Namaste to Guruji. Jai Guruji Auntie. Jai Guruji, thank you so much, Shilpi. A very good morning from Boston. 6 inches of snow. I'm looking out my window. Beautiful lake surrounded by trees and ice and snow all around. And there's a stillness. There's a beauty in the nature. We must spend some time with nature because we are part of it. महसूस करिए कि हम एक ही हैं. ये पूरा यूनिवर्स, we are just part of it. We are part of each one of you. We're all connected. And when you realize that, you get into the now mode. Like, while I'm reading this book, it's amazing that how much I have learned within few days, because I'm a daydreamer. I would always plan, envision, and always think about the past in a very nice way, not in a negative way, or learn from the past. There's always a learning from a past that we must keep it or go back, revisit, and gain from that to enhance our life now at this time. So those things, these practices are very, very important. जब हम अपने अतीत में जाते हैं और वहाँ जा करके उन सुनहरी यादों को या उन जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, जो चीज़ें हम भूल से गए हैं, उसको वापस अपनी लाइफ में अभी उसको यूज़ करके आज वर्तमान हम अपना अच्छा बना सकते हैं या सुधार सकते हैं. तो those things are very important, because ऐसा नहीं कि हम पीछे जा के बस दाना बुनते रहें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो नेगेटिव वे में होता है. But there's always a positive side to go into your past, get what is useful for you now, or you go in the future and plan your life nicely. Not in the future keep worry, like कल हम लोगों ने पढ़ा था fear के बारे में, the origin of fear. The second chapter was yesterday. जो fear डर के बारे में था कि हम किस चीज़ से डरते हैं. हम अपने आने वाले कल से डरते हैं, आने वाली फेलियर से डरते हैं, आने वाली जो मिसहैप्स होने वाली हैं, जो हमें प्रॉब्लम्स होने वाली हैं कि हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अब क्या होगा, तब क्या होगा. वो चीज़ों से यहाँ पर ये राइटर जो प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ में जो Eckhart Tolle, he's the writer, this is what he's trying to make us understand. I mean, we all know that, we all are wise to understand, but to practice is another level of consciousness. And this is what we're trying to read and trying to change within ourselves. थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम अपनी डेली लाइफ में ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ. जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर आगे की सोचती रहती हूँ कि कैसे, और सही बताऊँ तो ज़्यादातर मेरी सोच गुरुजी की होती है कि संगत किस तरह से अच्छी तरह से चले, क्या सुधार किया जा सकता है, और किस तरह से गुरुजी का आगे ये नए-नए लोगों को जोड़ सकते हैं, या किसी को क्या ज़रूरत है. उस तरह की सोच मेरी ज़्यादा होती है, क्योंकि अब गुरुजी मिल गए हैं. अब उस तरह की सोच गुरुजी की कृपा से नहीं होती है कि कल क्या होगा. अब लगता है जो भी होगा अच्छा होगा. सो ये सोच हमें बस थोड़ा-सा चेंज करनी है, और यहाँ पे ये राइटर हमें हेल्प कर रहे हैं बताने के लिए और समझाने के लिए. तो आइए आगे बढ़ते हैं. यहाँ ठंड एकदम टीन्स में, बहुत ही ठंड है बॉस्टन में. And I'm just so cozy in my room looking out the window, and Guruji's right here with beautiful flowers. And I'm at the present moment.
I'm right here. I'm not in Seattle. I'm here. And you can hear the train signal. There's a train line going. And the sound of the train, that reminds me that I'm here. I'm not in Seattle. I have to be in the present moment. I'm not thinking of my house in Seattle. और मैं कहीं हीटिंग ऑन करके तो नहीं छोड़ आई, कहीं स्टोव तो नहीं छोड़ के ऑन करके आ गई, सुबह सुबह जल्दी फ्लाइट थी. That's all gone. Now I'm here to take care of my grandchildren, my little princess, 6-month-old, जिसको मैं अभी बस सुला के आई हूँ. Hopefully वो सोती रहेगी. So let's go on to move to the next chapter. This is chapter 3, entering the now. Are you be ready to enter the now? I sure am. Let's enter the now together. That will be more powerful with all good energy. No thinking of the past, no thinking of the future. Just enjoying this moment. जब हम साथ में हैं, हम सारे एक साथ हैं और गुरुजी हमारे साथ हैं. इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो आइए आगे बढ़ते हैं. With the timeless dimension comes a different kind of knowing, one that does not kill, the spirit that lives within every creature and everything, a knowing that does not destroy the sacredness and mystery of life, but contains a deep love and reverence for all that is, a knowing of which the mind knows nothing. तो यहाँ पर बेसिकली इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है कि किस तरह से एक टाइमलेस डायमेंशन होता है, जहाँ देखिए जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें टाइम का कुछ आभास ही नहीं होता था. ना कभी हम अपनी घड़ी देखते थे, ना सोचते थे अरे बहुत देर से बैठे हैं. हम तो उसी समय रहते थे, उस क्षण गुरु जी के साथ ही रहते थे. तो जो भी अच्छी मेमोरीज है आपकी, when you visit, you realize that at that time you were right present at the moment. Time had no meaning because you just enjoying that. Your soul is at peace. Your soul is so blissful. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि one does not kill the spirit that lives within every creature and everything, a knowing that does not destroy the sacredness and mystery of life. ये भी बहुत आवश्यकता है कि ये जो sacredness of life, ये हमारी जो जिंदगी है, ये हमारी जो हमारा जीवन है, ये बहुत ही पावन है, sacred है, जो हमें गिफ्ट में मिला है ईश्वर से, जो हमें इस धरती पर भेजा गया है एकदम प्योर बना करके. तो उसको हम किस तरह से लीड करते हैं वो भी हमें समझना होगा. जीवन तो सबको मिलता है, समय उतना ही सबको होता है, पर हम उस समय का, उस जीवन का किस तरह से सदुपयोग करते हैं, या हम उस क्षण में रहते हैं, खुशी में रहते हैं और खुशियां बांटते हैं. जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप बांट सकते हैं. जब आप दुखी होंगे तो आप दुखी वाले वाइब्रेशंस देंगे सबको. मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है. So it is very, very important to understand that each life is sacred and there's a mystery of life, but contains a deep love and reverence for all that is. जो हमें सबको प्रेम करना है और सबको रिस्पेक्ट देनी है. A knowing of which the mind knows nothing. Mind से सोचेंगे तो उल्टा सोचते हैं. They start judging. But when we start thinking from our heart, that's when all these things, or from present, all these things, you can feel it. Break the old pattern of present moment denial and present moment resistance. Make it your practice to withdraw attention from past and future whenever they are not needed. Step out of the time dimension as much as possible in everyday life. If you find it hard to enter the now directly, start by observing the habitual tendency of your mind to want to escape from the now. You will observe
that the future is usually imagined as either better or worse than the present. If the imagined future is better, it gives you hope or pleasurable anticipation. If it is worse, it creates anxiety. Both are illusory. So इस पर ठहर करके थोड़ा सा सोचते हैं, क्या किस तरह से हम ये टेंडेंसी अपनी जो हमारी है, हम सब की है, मेरी भी है, किस तरह से हम या तो अपने अतीत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं। अतीत में वो सारी चीजें सोचते रहते हैं और फ्यूचर में आगे की सोचते रहते हैं, कैसे क्या करना है, और फिर उसको या तो अच्छा या तो बुरा। अगर बुरा सोचते हैं तो वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, अच्छा सोचते हैं तो वो भी एक इमेजिनरी होती है। तो दोनों में से कुछ भी सही नहीं है, मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, या कुछ भी वो खाली हम सोच रहे हैं। तो ये एक इल्यूशन की तरह है, एक माया की तरह है कि पीछे जो हो गया और आगे जो होगा। तो बचा क्या? बचा अभी वर्तमान, प्रेजेंट, नाउ। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल था वो भी एक इल्यूशन था, जो हो चुका है वो भी लीला थी, और जो आगे होना है उसको तो हमें पता ही नहीं है। उसमें हम अक्सर अपने ही दिमाग लगा लगा करके इमेजिन करते हैं, और ज़्यादातर इमेजिन क्या करते हैं? वर्स इमेजिन करते हैं। देखिएगा आप, अगर आगे का आप सोचिए या कोई प्लान बनाइए, तो हमेशा एक आपका दिमाग में रहेगा, एक फ़ियर रहता है, जैसे कल की चैप्टर में था। फ़ियर होता है कि अरे! ये नहीं हो पाएगा, अरे! ये ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें हम बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि ये दोनों, कल जो हुआ, आगे जो होना है, ये दोनों इल्यूशन हैं। Through self-observation, more presence comes into your life automatically. The moment you realize you're not present, you're present. Whenever you're able to observe your mind, you're no longer trapped in it. Another factor has come in, something that is not of the mind, the witnessing presence. Be present as the watcher of your mind, of your thoughts and emotions, as well as your reactions in various situations. This is very important. Reactions to in various situations. Be at least as interested in your reactions as in the situation or person that causes you to react. अक्सर हम सोचते हैं कि इसकी वजह से हम मेरा रिएक्शन ऐसे होता है, या हम किसी को दोषी ठहरा करके। तो क्या ये सही है? क्योंकि हमारा जो इमोशंस हैं वो हमारे हाथ में होनी चाहिए ना। किसी की वजह से थोड़ी ना हमें या तो गुस्सा आए, या हम गलत बातें सोचें या बोलें। क्योंकि अगर हम अपनी ही कंट्रोल में नहीं रहेंगे इमोशंस के, तो कोई भी ट्रिगर कर देगा, कोई भी आके कुछ कहेगा, आप तुरंत रिएक्ट कर जाओगे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, बी प्रेजेंट एट द वॉच ऑफ योर माइंड। आप अपने दिमाग से उसको खाली वॉच करो। एक प्रैक्टिस करते हैं, कल क्यों ना ऐसा करें कि कल पूरे दिन हम थोड़ा ऑब्जर्व करें अपने माइंड को, एंड वी कैन टेक नोट्स एंड राइट इट डाउन कि हाउ वी रिएक्ट टू अदर्स। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, या जस्ट बी अ वॉच ऑफ योर माइंड, कि जस्ट वॉच एज एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। और केवल आप देखिए उसको, उसके खाली ऑब्जर्वेंट होइए। Notice also how often your attention is in the past or the future. Don't judge or analyze what you observe. Watch the thought, feel the emotion, observe the reaction. Don't make a personal problem out of them. You will then feel something more powerful than any of those things that you observe. The still observing presence itself behind the content of your mind, the silent watcher. तो यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है सोचने की कि आप जब अपना अटेंशन, हमेशा आप देखिए, हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है। अब उसको आप
जज नहीं करिए, खाली देखिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और फिर उसके साथ आपके इमोशंस क्या होते हैं और आपका रिएक्शन क्या होता है। और उसको आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बनाइए सोच सोच करके, और केवल एक साइलेंट वॉचर की तरह चुपचाप आप खाली उसको, कहते हैं कि श्रोता बन जाइए, श्रोता, केवल देखते रहिए चुपचाप से। Intense presence is needed when certain situations trigger a reaction with a strong emotional charge, such as when your self-image is threatened. A challenge comes into your life that triggers fear. Things go wrong, or an emotional complex from the past is brought up. In those instances, the tendency is for you to become unconscious. The reaction or emotion takes you over. You become it. You act it out. You justify, make wrong, attack, defend, accept that it isn't you. Is the reactive pattern. The mind in its habitual survival mode. तो ये अक्सर हमारी जिंदगी में होता है कि कुछ किसी ने कुछ कह दिया या कुछ याद आ गया तो क्या होता है, वो चीजें फिर से एक वीडियो की तरह चलने लगती हैं, एक फिल्म की तरह चलने लगती हैं, और फिर हमारी टेंडेंसी जो होती है, हम रिएक्ट करते हैं। उस समय क्या हुआ था, फिर क्या होता है, हम अपने को डिफेंड करते हैं कि ये इस वजह से मैंने नहीं कहा था, उस वजह से हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हम आज तक करते आए हैं और करते रहे हैं, और हो सकता है करते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में नहीं ये सारी चीजें जाती हैं, क्योंकि ये सारे संस्कार कितने जन्मों के हैं जो हमारे माइंड में क्रिएटेड हैं। तो ये जो राइटर हमें अभी बताना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें, रिएक्शन हम करते हैं लोगों की वजह से, उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। और अगर हम अभी नाव में होंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि यू विल नॉट थिंक अबाउट इट। वो पीछे पास्ट हो गया या फ्यूचर में क्या होना है किसी को नहीं मालूम। अगर आज हम संभाल लें, अभी संभाल लें, तो उसी को स्वर्ग बना लें, तो कोई चिंता ही नहीं होगी, ना कोई भय होगा। Identification with the mind gives it more energy. Observation of the mind withdraws energy from it. Identification with the mind creates more time. Observation of the mind opens up the dimension of the timeless. The energy that is withdrawn from the mind turns into presence. Once you can feel what it means to be present, it becomes much easier to simply choose to step out of the time dimension whenever time is not needed for practical purposes and move more deeply into the now. तो देखिए, ये आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, जो जब हम माइंड के बारे में बिल्कुल सोचते हैं, मेरा हम जो है वो मेरा केवल माइंड ही है, तो उससे क्या होता है, उसको उसी एनर्जी हम देते हैं। और एनर्जी किस तरह की होती है, हम अच्छी एनर्जी दे सकते हैं और गलत एनर्जी दे सकते हैं। तो जो माइंड से ही हम केवल आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत चीजें दिखेंगी, बहुत चीजें दिखेंगी, और लगेगा कि हमें इस समय जो है, जो अभी समय है, उसमें हम किस तरह से जाएं। सो ये चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी, केवल पढ़ने से नहीं होगा। केवल यही हम समझ लें कि हमें पीछे का जो बुरा हुआ था वो सोचना है, या आगे का जो फेयर है कि फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ रिजेक्शन, ये सारी चीजें जो हम अपने दिमाग से बुनते रहते हैं, उससे हमें हटना होगा। केवल अगर यही सोच लें और आज जो है उसको अच्छा बनाना है, या अगर पीछे जाना भी है तो अच्छी चीजें, जो जो बुरी चीजें हों उससे अच्छाई निकाल करके अपना भविष्य अच्छा बनाएं, then you give your energy to that.
Identification with the mind gives it more energy. Observation of the mind withdraws energy from it. Identification with the mind creates more time. Observation of the mind opens up the dimension of the timeless. The energy that is withdrawn from the mind turns into presence. Once you can feel what it means to be present, it becomes much easier to simply choose to step out of the time dimension whenever time is not needed for practical purposes and move more deeply into the now. This does not impair your ability to use time, past or future, when you need to refer to it for practical matters. So, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि we can go in the past and the future, but वो एनर्जी किस तरह की आप उससे लेते हैं, आप उससे सीखते क्या हैं, आप क्या क्यों आप पीछे जाके जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं पीछे का. अगर हम कोई क्रिएटिव या कुछ यूज द योर पास्ट experiences to maximize the betterment of your now, तब तो ठीक है. पर अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के आज अपना खराब करते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न होती है, नेगेटिव रिएक्शन होता है, देन वी शुड नॉट डू दैट. और फ्यूचर का भी उसी तरह है. फ्यूचर का अगर आप अच्छी तरह से प्लान करो, हम सारे प्लान करते हैं, we all write down, especially I always write down at night what I have to do in the morning next day. Until I write down, sometimes I cannot focus on it. Then every small thing triggers up, then I just get derailed. So it's important if you can plan in a constructive way to enhance your life today, now, then it is okay. You have to get what is needed for practical purposes and move more deeply into the now. This does not impair your ability to use time, past or future, when you need to refer to it for practical purposes. Nor does it impair your ability to use your mind. In fact, it enhances it. जैसे मैंने कहा, if you use that past or future to enhance your life और बेहतर बनाने का, अगर आप उस तरह से यूज करते हैं, you can enter that part, past or future. But if you bring more negativity or negative thinking or fear, then it's better not to think and try to just be in the present moment now. In fact, it enhances it. When you do use your mind, it will be sharper, more focused. और ये अक्सर देखा गया है कि अगर आप पीछे जा करके जो गलतियों से सीखते हैं, तो आज आप अपने माइंड को अच्छी तरह फोकस करके, शार्प करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. The enlightened person's main focus of attention is always the now, but you're still peripherally aware of time. In other words, they continue to use clock time, but are free of psychological time. So beautiful. So the enlightened mind, जो जिसको ये समझ है, जो कॉन्शियस रहता है समय के प्रति, उसका अटेंशन हमेशा फोकस अभी में रहता है. बट वो पेरिफेरली, जैसे कहते हैं ना, पीछे का आगे का, उसके किनारे जो जो अच्छी चीजें हैं वो सीखना है, वो उससे निकाल करके लाते हैं और फिर उस क्लॉक टाइम में यूज करते हैं, आज के लिए यूज करते हैं. सो ये बहुत आवश्यकता है जानने के लिए. letting go of psychological time. Learn to use time in the practical aspects of your life. We may call this clock time. Practical aspects of your life, ये आगे देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं वो. But immediately return to present moment awareness when those practical matters have been dealt with. In this way, there will be no buildup of psychological time, which is identification with the past and continuous compulsive projection into the future. तो जैसे मैंने कहा कि उसको प्रैक्टिकल वे में जो यूज करते हैं, अतीत जो बीत गया है आपका, उससे आप क्या सीख के लाते हैं, आज में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना आज एनहांस कर सकते हैं, या फ्यूचर में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं.
पर उस पर ही नहीं हमें फेलियर्स में जाना है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यू कैन गो इन दोज थिंग्स बट ओनली फॉर अ लिटिल व्हाइल वेयर यू कैन एनहांस योर प्रेजेंट। बार बार उस पर कंपल्सिव उसमें नहीं जाना चाहिए। इफ यू सेट योरसेल्फ अ गोल एंड वर्क टुवर्ड इट, यू आर यूजिंग क्लॉक टाइम। जैसे मैंने कहा, मैं अक्सर वो लिखती हूँ गोल्स, क्या करना है मुझे कल। तो उससे ये रहता है कि आपको मालूम है क्या करना है। यू नो यू नॉट गोइंग टू सिट इन द मॉर्निंग एंड थिंक अच्छा अब आज क्या करना है मुझे। यू आर अवेयर ऑफ वेयर यू वांट टू गो, but you honor and give your fullest attention to the step that you're taking at this moment. If you then become excessively focused on the goal, perhaps because you are seeking happiness, fulfillment, or a more complete sense of self in it, the now is no longer honored. तो ये थोड़ी सी फाइन लाइन होती है कि कभी कभी हम इतना कॉट अप हो जाते हैं अपने गोल्स में कि जैसे कोई सोचिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा है 3 गोल मुझे आज करने हैं या कल करना है अगर आपकी रात है तो उसको लिखा है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम इतने कॉट अप हो जाते हैं कि वो 3 जो लिखे थे वो करने ही तो हम बहुत प्रेशर डाल देते हैं नाव में। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि इस तरह से हमें बचना है उस चीज से, रिलैक्स वे में करना है। जितना हो जाता है वो ठीक है, नहीं तो दैट्स ओके, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे। पर ये बहुत फाइन लाइन है। अक्सर जो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं उनके साथ बड़ी मुश्किल होती है। वो चाहते हैं सारे गोल मेरे आज ही के दिन खत्म हो जाए। तो उससे बचने के लिए वो यही बता रहे हैं, excessively focused on the goal perhaps because you're seeking happiness, fulfillment, or a more complete sense of self in it, the now is no longer honored. It becomes reduced to a mere stepping stone to the future with no intrinsic value. Clock time then turns into psychological time. Your life's journey is no longer an adventure, just an obsessive need to arrive, to attain, to make it. You no longer see or smell the flowers by the wayside either, nor are you aware of the beauty and the miracle of life that unfolds all around you. Then you're present in the now. This is so beautiful. कि जब हम अपने गोल ओरिएंटेड में उसमें फंस जाते हैं कि मुझे ये काम करने हैं आज, तो क्या होता है, we stop smelling the flowers on the wayside. और जो ब्यूटी और मिरेकल ऑफ लाइफ है जो हो रहा है, जैसे एक आप देखते हैं छोटी सी गार्डन में कोई कली खिल रही है, आप एक दिन देखते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं, धीरे 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 वो कैसे पूरा फूल खिल जाता है। दैट इज अ ब्यूटी, दैट इज अ मिरेकल ऑफ लाइफ। किस तरह से ईश्वर की कृपा किस तरह से होती है, कैसे रात में कलियां बंद हो जाती हैं, फिर दिन में धीरे धीरे धूप से खुलती हैं। तो ये वो बताना चाहते हैं कि हम इतने गोल ओरिएंटेड ना हो कि आसपास जो ब्यूटी है उसको हम देखें ही ना, निहारें ही ना, महसूस ही ना करें। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत आवश्यकता है इसके लिए। Are you always trying to get somewhere other than where you are? Is most of your doing just a means to an end? Is fulfillment always just around the corner or confined to short-lived pleasures such as sex, food, drink, drugs, or thrills and excitement? Are you always focused on becoming, achieving, and attaining, or alternatively chasing some new thrill or pleasure? Do you believe that if you acquire more things, you will become more fulfilled, good enough, or psychologically complete? Are you waiting for a man or a woman to give meaning to your life? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ चले जाएं तो मुझे शांति मिलेगी, अगर हम वहाँ चले जाएं तो कितनी खुश हो जाऊंगी मैं, या अगर वो इंसान मुझे मिल जाए तो वो मुझे कंप्लीट कर सकता है, या वो खाना हो या ड्रिंक हो, ड्रग्स हो, थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, कुछ भी हो। We start thinking these things are going to give you happiness.
और you will feel complete, psychologically complete. But ये सब माया जाल है, हम सब जानते हैं। अब तक हम सबको समझ आ चुकी है कि जो इटर्नल ब्लिस, जो खुशी है ना, वो हमारे अंदर ही है। हमें हमें उसी तरफ जाना है। Nobody can give you happiness, no place, person or thing. ये आप समझ लीजिए, हम सबको समझना है। कभी भी अपनी खुशी हम दूसरे इंसान में ना ढूंढें, वो हमेशा दुख दर्द ही मिलेगा। अगर खुशी हम अपने आप नहीं खुशियां बना सकते हैं, कोई भी नहीं हमें खुश कर सकता है। यस, कोई कोई इंसान अपनी एनर्जी से आपको खुशियां दे सकता है, किसी के पास जाने से आपको अच्छा लगता है, पर कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई संपूर्ण इंसान नहीं है, सब में त्रुटियां होती हैं। तो वो एक जो कहते हैं ना कि वो जो एक हिरनी होती है, उसके नाभि में ही कस्तूरी जो सुगंध आती है, और वो समझ नहीं पाती है, और वो हर जगह घूमती रहती है, दौड़ती रहती है वो सुगंध की ओरिजिन पाने के लिए। ऐसे ही हमारी लाइफ है। हमारे अंदर जो फाउंटेन ऑफ ब्लिस, जो हैप्पीनेस है, उसको छोड़ करके हम बाहरी चीजों में देखने लगते हैं, बाहरी व्यक्ति में देखने लगते हैं, या सोचते हैं हम ये करेंगे। कई लोग सोचते हैं ड्रग्स में हैप्पीनेस है, कई लोग सोचते हैं सेक्स में हैप्पीनेस है, कई लोग सोचते हैं शॉर्ट लिव प्लेजर्स जो होती हैं ये खा लेंगे, या ड्रग्स है, या ड्रिंक है, या थ्रिल्स है, या एक्साइटमेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ योर चॉइसेस, इट्स अप टू यू। पीपल थिंक बार में जाएंगे, वी आर वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी देयर, यू नो, दैट इज ओनली टेम्पररी, क्षण है वो। उसके बाद और भी आप निराशा में डूब जाते हैं। लॉट ऑफ दिस बिग सेलिब्रिटीज आप देखो, क्या लाइफ है उनकी, चाहे वो एल्विस प्रेस्ली हो, कोई भी हो। हाउ डिड दे डाई? माइकल जैक्सन और मिलियंस मिलियंस ऑफ मनी, किस तरह से उनकी लाइफ गई है। वेरी पैथेटिक। दे वर नॉट हैप्पी पीपल because they were looking for success in different outward thing, material things. तो ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि हमें इससे, इस सोच से आगे उठना है, और in the normal mind identified or unenlightened state of consciousness, the power, the infinite creative potential that lie concealed in the now are completely obscured by psychological time. Your life then loses its vibrancy, its freshness, its sense of wonder. The old patterns of thought, emotion, behavior, reaction, and desire acted out in endless repeat performances. A script in your mind that gives you an identity of sorts, but distorts or covers up the reality of the now. The mind then creates an obsession with the future as an escape from the unsatisfactory present. जैसे मैंने कहा कि हम एस्केप करना चाहते हैं कि जो आज है वो मेरा अच्छा नहीं है, इससे इससे ये सब करेंगे तो खुशियां मिलेंगी, और फिर वो रिपीटेड पैटर्न्स होने लगता है, या हम दिमाग में वो बुनने लगते हैं, तो वो ठीक नहीं है। What you perceive as future is an intrinsic part of your state of consciousness now. If your mind carries a heavy burden of past, you will experience more of the same. The past perpetuates itself through lack of presence. The quality of your consciousness at this moment is what shapes the future, which, of course, can only be experienced as the now. तो ये समझने की आवश्यकता है बहुत कि जो हमारा पास्ट अगर बहुत हैवी या बर्डन रहा, उसको हम सोच सोच करके, जो अच्छा नहीं रहा हो, जिसमें दर्द, जिसमें परेशानियां, उदासी हो, वो पास्ट को हमें आज में नहीं लाना है। तो ये हमें इतनी युक्ति करनी है, ये सोच बदलनी है अपनी, कि पास्ट में जो अच्छाई है उससे सीख आज में करनी है। पर पास्ट अगर आपका दर्दनाक है, उसको विजिट नहीं करना है।
एंड वो प्रैक्टिस से आ सकता है, क्योंकि वो आपके कॉन्शियसनेस में जब आप अच्छा सोचोगे या आप अच्छा, हमेशा आप कहते हैं ना, एक विजुअलाइजेशन होती है, एक अफर्मेशन होता है, which we must practice every morning first thing. Always tell yourself, you're beautiful, you are strong, you can do anything, your beautiful day arrives today. There's nobody who can give you happiness. I will create my own happiness. I will move towards a better today. I will move towards the sunshine. I'm going to be a winner today. ये अपने मन को आपको रोज बताते रहना है, और जब आप बताते रहोगे आपकी एक छाप लग जाती है। या आपको अगर उदासी भी हो, आप चाहे यूं ही स्माइल करो, चाहे आपका मन भी ना हो, आप जितना स्माइल करोगे आपकी आदत हो जाती है, और वो माइंड आपको वही खुशियां देने लगता है, क्योंकि माइंड को वी कैन ट्रेन इट। जैसे मैंने कहा ना, जो जो आप रिपीट पैटर्न करते हो वो माइंड तक पहुंचती है, and the mind can do wonders or take you in darkness also. It depends, the choice is yours, your thought pattern, what you're feeding your mind. So ये बहुत ही आवश्यकता है कि we have to keep telling ourselves, if it is the quality of your consciousness at this moment that determines the future, then what is it that determines the quality of your consciousness? Your degree of presence. So the only place where true change can occur and where the past can be dissolved is the now. You may find it hard to recognize that time is the cause of your suffering or your problems. समय में ही तो होता है सब कुछ। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहिए। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि समय से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स होती है। You believe that you are caused by that they are caused by specific situations in your life. And seen from a conventional viewpoint, this is true. But until you have dealt with the basic problem-making dysfunction of the mind, its attachment to past and future and denial of the now, problems are actually interchangeable. If all your problems or perceived causes of suffering or unhappiness were miraculously removed for you today, but you had not become more present, more conscious, you would soon find yourself with a similar set of problems or causes of suffering, like a shadow that follows you wherever you go. Ultimately, there is only one problem, the time-bound mind itself. There is no salvation in time. You cannot be free in the future. Presence is the key to freedom. So you can only be free now. तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वो समझाते हैं कि अक्सर क्या होता है कि जो सफरिंग और जो अनहैप्पीनेस है, वो ज़्यादातर वो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उससे हम कॉन्शियस रहते हैं, उसको वी स्टार्ट एंजॉयिंग ऑल दैट नेगेटिव थॉट। कभी अकेले बैठते हैं तो वही प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स सोचते रहते हैं, हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आई डोंट डिजर्व दिस। तो क्या होता है, you soon find yourself with a similar set of problems or costs, because you're inviting those thoughts, you're giving your focus or consciousness to all the negative thoughts. So करना क्या है, हमें चेंज करना है, चेंज करना है अपना थॉट प्रोसेस। जैसे मैंने कहा, एवरी मॉर्निंग वी हैव टू अफर्म आवरसेल्व्स, you are a very powerful soul, you are very good, you can do anything, your body is, चाहे आपकी बॉडी जितनी भी problems हो, you keep telling your body, I have this beautiful body, I have this just healthy body, my mind is healthy, it's going to help me, I will take care of my body. All these things are very important. अगर आप उल्टा बोलोगे कि हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है, मेरा पैर नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, यू इनवाइटिंग ऑल दैट नेगेटिव थॉट पैटर्न। कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
हमें अपने आप डॉक्टर बनना है। हम कितनी चीजें अपनी सही थिंकिंग से ही ठीक कर सकते हैं। ये पावर हम सब में शक्ति दी गई है। अपने आंतरिक शक्ति को पहचानिए। हम कौन हैं? वी आर द ओनली जीव जिसको दिमाग दिया गया है, जिससे हम दिमाग से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, दिमाग से हम क्रिएट कर सकते हैं, दिमाग से अच्छी चीजें कर सकते हैं। ऑल दिस क्रिएटिव जो जीनियसेस हैं वो क्या करते हैं? उनके पास भी उतना ही समय है, उनके पास भी वही शरीर है जो हमारे पास है। व्हाट इज द डिफरेंस? दे यूटिलाइजिंग all that experience that they had suffered into creating a better today. That is the only difference. They are in now. They want to achieve now. They want to create a beautiful world now. That is the difference. And we can do it. We have that power. Only thing, we have to change our thought mind out of all the negativity, all the fear, and just be in the now. गीता में भी यही कहा गया है, हमारे कर्म पर ही फोकस करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए उससे क्या होगा। आज हम संभाल लें वही ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये सारी सफरिंग जो है सोचने से ही है, और सैल्वेशन तभी हो सकता है जब हम आगे की गलत धारणाओं से बचें। और प्रेजेंस इज द की, आज अभी उसी से हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रेजेंस इज द की टू फ्रीडम, सो यू कैन ओनली बी फ्री नाउ। और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो आधा आज कर दिया, आधा कल करेंगे। आई थिंक आज यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि ये सब अब्सॉर्व करने के लिए भी हमें समय देना है। केवल सुनने से नहीं होती चीजें। जो जो अभी आपने सुना है उस पर मंथन करिए, उसको अपने दिमाग में डालते रहिए। जो हमारी गलतियां हैं वो हम ही जानते हैं, कोई नहीं जानता। हमारे अपनी गलत धारणाओं से ही कितने हम आगे का उटपटांग ही सोचते रहते हैं। तो ये हमें समय दे रहे हैं 2024 में गुरुजी, इस बुक के द्वारा, इस राइटर के द्वारा और मेरी वाणी के द्वारा। मेरे ख्याल से जो गुरुजी सही सही ही बुलवाएं गुरुजी, यही मैं उनको प्रे करती हूँ। गुरुजी, I don't know anything. I'm just, गुरुजी के स्वरूप सामने रहता है, and I put the book there, and गुरुजी, whatever thought you give will be all yours. It has nothing to do with me. So ये चीजें समझने की हैं आपको। केवल 1 घंटे में ये डोज नहीं मिल सकता है इंजेक्शन की, बस आपको इंजेक्शन लग गया और आपका बिल्कुल आज आप उसी में हो गए, नहीं होता है। ये प्रैक्टिस, तभी तो इस बुक का नाम है प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ। वी ऑल नो दैट, हम सबको मालूम है, पर हमारी एक अलग पैटर्न ऑफ वे हो गया है, नेगेटिव थिंकिंग में, फियर ऑफ एवरीथिंग, not enjoying now, not being in the moment, not smelling the roses on the way, not being happy and cheerful। सबको स्माइल करके, कोई आपका गलत भी कर रहा है तो भी उसको माफ करके आगे बढ़ते रहे, तो उसमें क्या होता है, हमें खुद ही शांति रहती है। अगर किसी ने आपका बुरा भी किया है, अक्सर होता है, मेरे साथ भी बहुत होता है, वी ऑल नो द वाइब्स, वी गेट द वाइब्स, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं, आप ध्यान में बैठते हैं, you can receive the energy and you can feel, you can differentiate it। पर वो सब लेते हुए, मुस्कुराते हुए और लोगों को माफ करते हुए, किसी को अक्यूज ना करें, इसकी वजह से ये हुआ, उसने मेरा ये किया, वो बिहाइंड द बैक मेरे ऐसे प्लान हुआ, ये हुआ, वो सब फिर हम अपने भी कैसे रह पाएंगे? वो तो हम उसी की तरह हो गए। हमें अपना जीवन सुधारने के लिए अपने से ही कोशिश करनी होगी, कोई और नहीं आएगा। Nobody will be there because we know our innermost thoughts। हमें वो सुधारने के लिए अवसर मिल रहा है 2024 में। हम आज क्या अपना सुधार सकते हैं? आज खुशियां बांट सकते हैं। बांटने में बड़ी शक्ति होती है। बेवजह किसी के लिए आप अच्छा कर दीजिए, किसी ने बुरा भी किया तो भी उसका भला सोचिए, उसके लिए प्रे करिए।
कोई दुखी है उसके आंसू पोंछिए, कोई अगर बीमार है उसके उसके 2 बातें उसके साथ करिए। केवल रोग की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आपको जीवन की बात, अच्छी-अच्छी चीज़ें बात करनी है। आपको किसी को याद नहीं दिलाना है कि अरे आई एम सो सॉरी तुम्हारे साथ ये हुआ है, दैट्स रॉन्ग। सो ऑल दीज़ थिंग्स वी मस्ट सिट एंड रियलाइज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। हम जो इस चोले में, इस जीव हम आए हैं इस शरीर में, वो क्या किसी के काम आया है? क्या कुछ हम अच्छा कर पाए हैं, या यूं ही आए हैं और यूं ही चले जाएंगे? अगर कुछ भी ना कर पाए, अच्छी सोच रखें सबके लिए, केवल ध्यान में बैठ के सबके लिए प्रे करें, वो भी बहुत बड़ी अच्छाई है। अगर हम सब एक दूसरे के लिए प्रे करें, ये धरती स्वर्ग ही हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई हमारे लिए भी प्रे कर रहा होगा। सो ये पावर ऑफ नाउ प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी अपने दिमाग की सोच बदलनी होगी, थोड़ी युक्ति करनी होगी, अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। प्रेशर डाल के नहीं, नहीं तो फिर जैसे मैंने कहा गोल ओरिएंटेड, हाँ हाँ ये बीट आवरसेल्व्स। समटाइम्स इफ वी आर रॉन्ग वी हैव टू बी काइंड टू आवरसेल्व्स आल्सो। डोंट बीट योरसेल्फ। हम ज्यादातर अपने पर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हाय मेरे से गलती हो गई, हाय क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया। लेट इट गो, वी ऑल आर ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। सो ये चीजें बहुत ही आवश्यक है प्रैक्टिकल वे में समझना और आगे बढ़ना, और किस तरह से ये जीवन को सफल बनाना। जितना भी बाकी रह गया है, जो भी जी लिया, जो आगे बाकी है जीवन, उसको कितना मधुर बनाएं अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और सबसे ज्यादा तो इस यूनिवर्स के लिए, चाहे वो नेचर हो, उसके प्रति क्या आप बैठते हैं, उसको रियलाइज करते हैं ये भी कुदरत है, ईश्वर की देन है। कभी कभी चुपचाप बैठ के निहारना चाहिए, आकाश को देखिए, बादलों को देखिए, पानी की बूंदों को देखिए, सुनिए, फूलों को देखिए। उस पल में जाइए जो पावर नाउ उस समय आप महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं बैठी हूँ देख रही हूँ, तो आई एम राइट नाउ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट कल मैं वहां आई और कैसे फ्लाइट लिया और सियाटल में अब क्या हो रहा है, अब वहां पर ये हो रहा है, अब क्या होगा, मेरा ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। नो, आई एम राइट हियर, जहाँ गुरुजी मुझे भेजते हैं सेवा के लिए, वो पल मेरे लिए गुरुजी का पल होता है, वो उनका हुक्म होता है। अगर हम इस तरह से अपना जीवन सोचने लगे तो बदल जाता है, थिंकिंग बदल जाती है। अगर, क्योंकि हम तो भाग्यशाली, हम सारी संगत आप सब कि गुरु जी हैं हमारे लाइफ में। तो अगर इतनी महान शक्ति, उनकी शक्ति लेकर के, उनका साथ लेकर के कुछ भी करेंगे तो वो अच्छा ही होगा ना। तो यही मैं आज विराम देती हूँ। अब मैं अब नाव में आऊंगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मुझे करनी है जा करके, रिया उठ गई है, उसको उसके साथ खेलूंगी, और मैं भी एक छोटी सी बच्ची बन जाऊंगी। जो हम भूल जाते हैं एक छोटे से बच्चे की खुशियाँ क्या होती हैं। आपकी जो उंगली पकड़ती है और वो आपकी तरफ देखती है, वो पावर ऑफ नाउ होता है। उस समय वो समय थम जाता है। तो वो इस वजह से शायद गुरु जी ने यहाँ भेजा है इस बुक के साथ कि एक्सपीरियंस करो कैसे चीजें होती हैं अब में, अभी में, नाउ में, practicing the power of now. Thank you so much. Thank you for this opportunity. Hopefully I'll be now live tomorrow also. Jai Guruji, thank you. And keep practicing. Keep thinking about what you have read or what you have listened. Jai Guruji, Jai Guruji.